Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, as you know, we are discussing our chapter number 6, that is anatomy of flowering plants. Students, today we will discuss about the transverse sections. These transverse sections you have to cut in your practicals during practical classes. You yourself see these transverse sections of dicot root, dicot stem, monocot root and monocot stem. Let us first discuss about the transverse section of dicot root. Students, in dicot root, this is the epidermis. Epidermis is a single layer. Epidermis is a single layer and many cells bear root hairs. These are the root hairs. And it has a cuticle layer. The cuticle is single layer in the dicot root. Then this is the cortex. Cortex is made up of several layers of parenchyma cells. Cells have small intracellular spaces, round shaped. Then endodermis. This is the endodermis. This pink color layer is the endodermis. Consists of single layer of cells. The cells have a deposition of suberin. सुब्रीन की डेपोजिशन होती है इसके ऊपर इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑन देयर रेडियल एंड टेंडेंशियल वॉल्स. इसकी रेडियल वॉल्स के ऊपर भी और टेंजेंट टेंडेंशियल इस तरह से टेंडेंशियल वॉल्स के ऊपर भी. नेक्स्ट इज द पेरीसाइकल. दिस इज द पेरीसाइकल. Pericycle comprises a few layers of specialized parenchyma cells inner to the endodermis. एंडोडर्मिस के अंदर यहाँ पे देखिए एक जैसे छोटे छोटे सेल्स की 3 लेयर्स हैं. वो क्या है? पेरीसाइकल है. नेक्स्ट आर द वस्कुलर बंडल्स. वस्कुलर बंडल्स आर रेडियल. ये है द वस्कुलर बंडल्स आर रेडियल एंड मे रेंज बिटवीन द रेंज ऑफ 2, 4 or 6. Here are the 4. 1, 2, 3, 4. It may be 6. And the xylem that is towards the endodermis is known as the protoxylem, and the xylem that is towards the center, it is known as the metaxylem, and this central part is known as the pith. Pith is very small and made up of parenchymatous cells, and this is phloem. This is phloem. This hole is known as the phloem. This is the transverse section of the dicot root. Students, please try this diagram. आपको ये पूरी की पूरी बनानी आनी चाहिए विद लेबलिंग और जैसे मैंने इसके पार्ट्स बताए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये एक ज़रूर आती है 5 मार्क्स की, ड्रॉ करनी आती है और साथ में इसके पार्ट्स के बारे में ब्रीफली रिटन आता है और ये प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. नेक्स्ट इज द मोनोकॉट रूट. नेक्स्ट इज द मोनोकॉट रूट. मोनोकॉट रूट, द स्ट्रक्चर ऑफ द एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल of monocot root resembles exactly those of the dicot root. सेम है, वही लिखना है आपने. Now what about the vascular bundles? यहाँ पे vascular bundles रेडियल हैं, वहाँ पे भी रेडियल थे. ठीक है जी. वहाँ पे टेट्रा मतलब 2 की फॉर्म में थे, 2, 4, 6. लेकिन यहाँ क्या है? पॉलीआर्क है. पॉलीआर्क मीन्स कितनी भी हो सकती है नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है. It may be 9, it may be 10. Pith is large. वहाँ पिथ स्मॉल थी और पेरेंकाइमेटस सेल से बनी हुई थी. यहाँ भी पेरेंकाइमेटस सेल से बनी हुई है. यहाँ पे पिथ थोड़ी सी लार्ज है, वेल डेवलप्ड है एंड कंपोज्ड ऑफ पेरेंकाइमेटस सेल्स. सो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट. प्लीज रिमेंबर दिस डायग्राम. एंड नेक्स्ट वी हैव द stems, transverse sections of the stem of root, monocot as well as dicot stem. First we will discuss about the transverse section of the dicot stem. Transverse section of dicot stem. Here
It is epidermis. Epidermis is the outermost layer of cells. Externally it is covered with a cuticle. ये देखो बहुत छोटी सी शायद नज़र आ रही हो आपको पिंक कलर की, यहाँ पे क्यूटिकल भी है लेकिन यहाँ पे लेबल नहीं की, आप कर भी सकते हो क्यूटिकल को लेबल। एंड मे बियर ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या, ये एपिडर्मस सेल्स लेबल किए हुए हैं, ये हैं यहाँ पे ट्राइकोम्स। क्योंकि रूट में तो हम इनको रूट हेयर्स बोलते हैं, स्टेम में हम इनको ट्राइकोम्स बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया भी है जब हम पेरेन्काइमेटा सेल्स और एपिडर्मस डिस्कस कर रहे थे। तो इस ट्राइकोम के ऊपर कहीं कहीं कुछ ना कुछ स्टोमेटा भी होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट इसके नीचे है एपिडर्मिस के नीचे है हमारा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू कोलनकाइमा सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। कुछ कोलनकाइमा सेल्स होते हैं दैट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कुछ ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट इज द कॉर्टेक्स। हेयर कॉर्टेक्स इज नॉट लेबल्ड बट इसके नीचे हाइपोडर्मिस के नीचे क्या है, ये रही हमारी हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस से जहाँ पे ये पेरेन्काइमा लेबल किया हुआ है, ये पेरेन्काइमेटा सेल्स कॉर्टेक्स के ही होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पेरेन्काइमेटा सेल्स, यू ऑल्सो लेबल इट एज कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के बाद हमारे पास यहाँ क्या है, नेक्स्ट लेयर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इज अ सिंगल लेयर एंड द सेल्स आर रिच इन स्टार्च ग्रेन एंड हेंस इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज स्टार्च शीट। उसके बाद आती है जी पेरीसाइकल। पेरीसाइकल अकर्स इनर टू द एंडोडर्मिस अबव द फ्लोएम ऑफ वेस्कुलर बंडल। ये हमारा वेस्कुलर बंडल है, एंडोडर्मिस के अंदर वाली लेयर है और वेस्कुलर के नीचे वाली है इन द फॉर्म ऑफ सेमील्यूनर पैचेस। सेमील्यूनर पैचेस ऐसे, ठीक है जी। एंड कंपोज्ड ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। नाउ कम टू द वस्कुलर बंडल्स। दीज आर द वस्कुलर बंडल्स, ये पूरे सर्कल में अरेंज है। दीज आर कैरेक्टरिस्टिकली अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, रिंग की तरह अरेंज है। नेक्स्ट आर द मेडुलरी रेज। हियर आर द मेडुलरी रेज, ठीक है जी, ये मेडुलरी रेज है इनके बीच में। तो मेडुलरी रेज आर द फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स बिटवीन द वस्कुलर बंडल्स। ये वस्कुलर बंडल है, इसके अंदर दो रेज हैं, दे आर नोन एज द मेडुलरी रेज। नेक्स्ट इज द पिथ। पिथ इज कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा सेल विद लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसेस। यहाँ पे हम पेरेन्काइमेटा सेल्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो दिस इज द टीएस ऑफ स्टेम ऑफ डाइकॉट यानी डाइकॉटिलेडनस प्लांट्स। सिमिलरली आपने इसकी ये वाली डायग्राम करनी है, इसके साथ जो डायग्राम दी हुई है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो आप ये वाली डायग्राम कर सकते हो। नेक्स्ट इज द टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। This is the TS of monocot stem. These diagrams are available in your NCERT book. हाँ जी, monocotyledonous same epidermis. Epidermis is a single layer and trichomes are absent here. डाइकॉट में ट्राइकोम्स नहीं होते हैं, सॉरी मोनोकॉट में ट्राइकोम्स नहीं होते हैं। क्यूटिकल प्रेजेंट होती है इसके सरफेस के ऊपर, यहाँ पे भी पिंक दिखाई हुई है लेकिन लेबल नहीं की है। Hypodermis consists of, this is hypodermis. Hypodermis consists of 2 or 3 layers of sclerenchyma cells. Then ground tissue. What is the meaning of ground tissue? Ground tissue is parenchymatous and is not differentiated into cortex and pith. These are the vascular bundle. ये जो scattered पड़े हैं ना, खिलरे हुए पड़े हैं, ये सारे vascular bundle हैं। बहुत सारे होते हैं इसमें vascular bundles. They may vary in size. कोई बड़ा है, कोई छोटा है। Each vascular bundle is surrounded by sclerenchymatous bundle sheath. ये जो शीट चढ़ी हुई है ब्लैक वाली, ये sclerenchymatous bundle sheath है। और ये जो vascular bundles होते हैं, they are co-joint and closed, ठीक है जी, they are co-joint and closed. So this is the TS of monocot stem. Next we will discuss about the leaf. तो leaf का अब हम leaf का डिस्कस करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, दिस इज द टीएस ऑफ लीफ, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ। तो अपर सरफेस इज कवर्ड बाय एडैक्सियल एपिडर्मिस, सॉरी
जो अपर सरफेस होता है उसको हम एडेक्सियल बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको अब एबैक्सियल बोलते हैं। ये अपर वाली एपिडर्मिस है, ये लोअर वाली एपिडर्मिस है। लोअर वाली एपिडर्मिस में कहीं कहीं होल होते हैं, दे आर नोन एज द स्टोमा और स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन ऊपर वाली लेयर पे ये बहुत कम मिलते हैं क्योंकि स्टोमेटा आर मोर on the lower surface of the leaf as compared to the upper surface of the leaf. The tissue is enclosed by two epidermal layers known as the mesophyll. एपिडर्मिस के नीचे क्या है हमारे पास? मेसोफिल। ठीक है जी। तो अपर एडेक्सियल वाली एपिडर्मिस है जो उसके नीचे मेसोफिल है, दैट इज नोन एज द पेलिसेड मेसोफिल। इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकली लॉन्ग शेप्ड सेल्स। जो एबैक्सियल एपिडर्मिस है नीचे वाली है, उसके पास ये जो मेसोफिल है वो क्या है? दैट इज स्पॉन्जी मेसोफिल। तो इसमें क्या होते हैं? होल्स होते हैं, एयर कैविटी होती है, दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ एयर इनसाइड एंड आउटसाइड। अब यहाँ पे आ जाइए वस्कुलर बंडल के ऊपर। वस्कुलर बंडल रिप्रेजेंट द मिड रिब। जो मिड रिब होती है लीफ में, वो उसके बीच में वस्कुलर बंडल होता है, उसके बीच में जाइलम और फ्लोएम होता है, दैट हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ फूड एंड वाटर थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द लीफ। Next is TS of monocot leaf. TS of monocot leaf. The transverse section of that monocot leaf shows an upper and the lower epidermis same, adaxial, abaxial. Same stomata are present. ठीक है जी। But in certain monocots, the cells of Adaxial epidermis along the veins are modified into large empty and colorless cells are known as bulliform cells. स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, यहाँ से ना इस तरह के सेल्स बाहर निकल आते हैं तो उनको हम बुलिफॉर्म सेल्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं? विच कॉज द लीव्स कर्ल इनवर्ड। अंदर की तरफ लीव्स मुड़ जाते हैं ताकि वाटर का जो लॉस है वो मिनिमम हो। जितना ज़्यादा लीफ एक्सपोज होगा बाहर की तरफ, धूप की तरफ, उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, अंदर टू इट मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर। हियर द मेसोफिल इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स एक ही तरह की मेसोफिल है, एडेक्सियल एपिडर्मिस के नीचे भी और एबैक्सियल एपिडर्मिस के नीचे भी, और ये सारी स्पॉन्जी है। ठीक है जी। तो जो पैरेलल, इसमें जो मोनोकॉट हमारे पास लीव्स होते हैं उनकी वेनेशन पैरेलल होती है। And the parallel variation in the leaf is reflected in near the similar size of the vascular bundles. अगर पैरेलल होती है तो वस्कुलर बंडल का जो साइज होता है वो सेम ही रहेगा एक्सेप्ट द मेन वेन। वस्कुलर बंडल्स आर कोजॉइंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो मेन जो वेन्स होती हैं पैरेलल इसकी मोनोकॉट लीव्स की, वो सारी पैरेलल होती हैं और इनका साइज भी सेम ही रहता है एज कम्पेयर टू द डाइकॉट। डाइकॉट में क्या है? मेन वेन में वस्कुलर बंडल थोड़े बड़े होते हैं और साइड वेन्स में छोटे होते हैं, क्योंकि साइड वेन्स छोटी होती हैं इसलिए। तो ये भी डायग्राम आपने प्रिपेयर करना है, दोनों टीएस ऑफ डाइकॉट एज वेल एज मोनोकॉट लीफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। सी हियर द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम. This increase in the girth. Girth means diameter. Girth of the stem and root in dicot plant is called the secondary growth. It is achieved by lateral meristem. Lateral meristem जब grow करती है तब ही इनकी girth में increase होता है. Secondary growth in dicot stem is achieved by cambium, vascular cambium activity. That is known as the lateral meristem. The increase in the thickness of the stem is increased by an increase in the quantity of secondary vascular tissue, mainly secondary xylem in the dicot stems. ये देखिए, ये है हमारे पास मतलब डाइकॉट स्टेम है। अब इसकी गिर्थ कैसे इंक्रीज होगी? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्राइमरी जाइलम है और ये प्राइमरी फ्लोएम है और ये अंदर वाला रेड वाला प्राइमरी जाइलम है। तो जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होगी इसके बीच में क्या होगा? हमारे पास इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, मतलब ये जो दोनों को अलग अलग कर देगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनेगा। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम किससे बनेगा? इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ द फॉर्मेशन एंड अकमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम बनता जाएगा
प्राइमरी की ग्रोथ होती जाएगी और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो बीच में एक लेयर बन जाएगी सेल्स की, दैट इज नोन एज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जिसको हम बाद में कॉर्क बोलेंगे और उसकी गिर्थ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, दैट इज द गिर्थ। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट्स। ये था हमारे पास डाइकॉट स्टेम। अब डाइकॉट रूट में कैसे होने वाली है ग्रोथ। सी हियर सम सेल्स ऑफ द conjunctive टिश्यू ऑन द इनर एज ऑफ द फ्लोएम। ये देखिए, पहले लेबलिंग देखिए। दीज आर द मेडुलरी रेज, हेयर आर द मेडुलरी रेज, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम एंड कैम्बियम रिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, सम सेल्स ऑफ द कंजक्टिव टिश्यू ऑन द इनर एज ऑफ द फ्लोएम। एज फ्लोएम के अंदर वाली साइड है, उसमें से जो सेल्स होते हैं पेरीसाइकिल के, वो क्या करते हैं, वो जाइलम के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट बिकमिंग मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक मीन्स वो सेल एकदम से एक्टिवली डिवाइड करना होना स्टार्ट कर देंगे। अगर वो एक्टिवली डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो सेम इसकी तरह डाइकॉट स्टेम की तरह कैम्बियल एक्टिविटी करेंगी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैम्बियल रिंग बनाएंगे और वो कैम्बियल रिंग क्या डिवीजन करेगी। डिवीजन करते करते वो सेकेंडरी फ्लोएम बना लेगी बाहर वाली साइड। ठीक है जी, बाहर वाली साइड बना लेगी। तो अंदरली साइड सेकेंडरी जाइलम बना लेगी, बाहर वाली साइड सेकेंडरी फ्लोएम बना लेगी। तो सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यू यहाँ पे बन जाएगा, जो एपिडर्मिस को साइड पे कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से ये देखिए, जो सेकेंडरी एपिडर्मिस है उसकी जगह सेकेंडरी जाइलम ने ले ली, उसको हम फेलम बोलेंगे और सेकेंडरी फ्लोएम वाले को फेलोजन बोलेंगे। इस तरह से ये जो ग्रोथ है डाइकॉट रूट्स में होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज वुड। Students, next topic is wood. What is wood? In botany, what is wood? Botanically, the secondary xylem. Secondary xylem को ही हम wood बोलते हैं बॉटनी में। सेकेंडरी जाइलम को हम वुड बोलते हैं बॉटनी में, वही हमारी वुड होती है। द कैम्बियम इज वेरी एक्टिव इन स्प्रिंग एंड प्रोड्यूसेस जाइलम एलिमेंट्स दैट आर लार्जर इन डायमेंशन। जब स्प्रिंग सीजन होता है उस टाइम जो कैम्बियम एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उस टाइम जाइलम एलिमेंट्स ज़्यादा बनते हैं और उनकी डायमेंशन भी ज़्यादा होती है। दिस टाइप ऑफ वुड फॉर्म्ड इन स्प्रिंग सीजन इज कॉल्ड द स्प्रिंग वुड। तो इस तरह से स्प्रिंग वुड बनती है जो स्प्रिंग सीजन में बनती है। ठीक है जी, और वी कैन से अर्ली वुड, इसको अर्ली वुड भी बोलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट दूसरी हमारे पास होती है विंटर में। विंटर में ये कैम्बियम एक्टिविटी बहुत लेस होती है और जो जाइलम एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल बनते हैं एज कंपेयर टू द स्प्रिंग सीजन। तो उस टाइम जो वुड बनती है उसको हम बोलते हैं ऑटम वुड, दैट इज नोन एज द ऑटम वुड और लेट वुड। ठीक है जी, यहाँ पे क्योंकि कैम्बियम एक्टिविटी है जो बहुत स्लो होती है इसलिए। इन ओल्ड ट्रीज द सेंट्रल कोर ऑफ द वुड दैट कंसिस्ट ऑफ डेड एलिमेंट्स विद हाईली थिकन लिग्निफाइड वॉल्स इज द हार्डवुड। जैसे जैसे ट्री ओल्ड होता जाता है तो उसके जो अंदर वाली साइड होती है उस वहाँ पे डेड एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी वॉल्स लिग्निफाइड हो जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवुड, दैट इज नोन एज द हार्डवुड। द पेरिफेरल रीजन, तो उसी ओल्ड ट्री की जो बाहर वाली वुड होती है, बाहर सेंटर से बाहर वाला जो होता है, बाहर वाला एरिया, अगर हम उसको कट करें जो बाहर वाला एरिया होता है वो सेकेंडरी जाइलम होता है और उसको हम बोलते हैं जी सैप वुड। सैप वुड होती है हमारी आउटर एरिया वाली वुड और हार्डवुड होती है हमारी इनर एरिया वाली वुड। इन ओल्ड ट्रीज, जो ट्रीज बड़े हो जाते हैं, जिनकी एज काफ़ी हो जाती है, अगर हम उनको काट के देखें तो वहाँ पे दो तरह की वुड आपको दिखाई देगी। एक कलर्ड होती है, एक दूसरे का कलर लेस ब्राउन होता है। जो अंदर वाली होती है हार्डवुड वो डार्क ब्राउन होती है, जो बाहर वाली होती है वो सैप वुड होती है, वो लेस ब्राउन होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक इज बार्क। व्हाट इज बार्क? अब ये बार्क क्या है? बार्क रेफर्स टू द ऑल टिश्यूज। कौन से टिश्यूज? दैट आर जो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाले एक्सटर्नल टिश्यूज होते हैं। ठीक है जी, वो बाहर वाला जो छिल्लड़ होता है ट्री का, दैट इज नोन एज द बार्क। जहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम और कैम्बियम एक्टिविटी होती है जो वो बिल्कुल नहीं होती है, द बार्क
which is formed early in the growing season is called the early bark or the soft bark, which is formed towards the end of the growing season is known as the late bark or the हार्ड बार्क। तो इसी बार्क के ऊपर एक होल्स बन जाते हैं लेंस शेप, दे आर नोन एज द लेंटिसल्स। दीज लेंटिसल्स हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर द बार्क। लेंटिसल्स they are the living tissues of the stem and help in the exchange of gases from the atmosphere. With this, our chapter is over. In the next session we will switch over to the chapter number 7, that is known as the animal tissues. Thank you and have a nice day.